15, special savings certificate 336, PIB 231, capital market 264, and then stock market 510. So, so it's the same 1700 or so that we were seeing on the previous page. Here it was, sorry, not 27, but 2200 we were seeing. 100 became 2200. Once you adjust for inflation, then the stock market 100 becomes 510, but it's still much better than other avenues, although at the same time, it is very risky. You can see that the blue line is very volatile, and there have been ups and downs, especially the last 2-3 years have not been good for the stock market. So again, if we take a 9-year horizon, 2011 to 2020, our NBP stock fund has given a return of 241%, which means if somebody invested 100 rupees, that grew to 341 rupees in 9 years. So 100 रुपए पे 241 रुपए का मुनाफा है. So 100 rupees would grow to 341 rupees. Now we were able to get Zameen.com is maintaining index on real estate. Initially, we had an issue. We did not have any index on real estate. So when people used to say, the stock market, how does it perform versus real estate? So we did not have an answer. So for the last 9 years, Zameen.com is keeping an index on real estate. So Lahore real estate has grown by 160%. Karachi real estate has grown by 157%. TSE 100 has grown by 143%. Imran certificate by 122%. Gold by 115%. US dollar by 94%. And bank deposits by 7%. So this is the last 9-year performance. So despite the very bad 3 years in the stock market, the last 2 years, we see that stock market has still given a decent return, slightly higher than special savings certificate, etc. But obviously, this is not the best period for the stock market, especially the last 3 years. So economy, what's happening right now? I think just to summarize, the economy was not doing too well anyway over the last few years because we are now pretty much in a debt trap. Our debt to GDP ratio is now close to 100%, and a large chunk of the budget goes into debt servicing and defense, and we have to borrow a lot to basically run the country. So, so we were having those problems anyway. Our reserves, for example, are only now close to $11 billion, 10 or $11 billion. Compare that with Bangladesh, where the reserves are now $35 billion or so. India, where the reserves are $500 billion. So we started anyway, in a very precarious situation. But basically, with this virus situation, things have gone even bad. And so right now, the prediction is that this particular fiscal year, which will end in June, another couple of months, the growth rate is going to be probably -1% or so. We were doing well for obviously 3 quarters, growing at about 2 to 3% per year. But the last quarter, because of the virus situation, has gone bad. And so overall, if you look at the growth for fiscal year 19-20, it will be probably close to -1%. Talking about fiscal year 2021, which starts from July. Again, it depends on the virus situation. If we are able to bring, we in the world, we are able to bring the situation under control in the next 2-3 months, then the next fiscal year could be good for us. Otherwise, it will again be, a bad situation. Maybe the economy might grow negative again next year. If we are not able to control the virus situation by December, then even next fiscal year, we might experience a negative growth rate. On the good side, what we have seen is that inflation has come down from a good like 14% to 8%, expected to go down another couple of percent in the next 2-3 months for one key reason that the economy is not growing. So when the economy doesn't grow, the demand for goods is not high and inflation does not grow. And interest rates again peaked at 13-14%, now down about 4% from there, expected to go down another 1 or 2%, which is good for the overall economy, lower interest rates. So again, economy, one can talk for an hour, but I think I'm just giving you current account deficit situation is better.
2 years ago, our current account deficit was $20 billion. Last year, it was $13 billion. This year, we're hoping it will be about $4 billion. So that situation is improving, but budget deficits are still high, close to 8 to 10% of GDP, and we cannot sustain it. Somehow, we'll have to increase taxes or reduce expenditure or do both. Otherwise, in the next few years, we will get into very serious trouble because of the huge debt that Pakistan is carrying right now. And that debt is continuously growing. So we see, as I mentioned, GDP contraction of about 1.5% this fiscal year. Next fiscal year, 3.6%, but that's optimistic. And it basically assumes that we'll be able to control the virus situation in the next 3 months. Otherwise, this 3.6% is also, under doubt. I've talked about current account deficit from 20 billion. It has gone down, and it is now fairly manageable. Again, you see a very close link between current account deficit, which is the brown dots or the orange dots, you can say, and the stock market performance, which is the blue line. So you see that, if you look at 2005, the current account deficit was like minus 1.4%, and the stock market gave a 41% return. If you look at 2006, the current account deficit went to 3.6, and the market still gave a 34% return. But once the current account deficit exceeds 4% of GDP, the stock market starts performing pretty bad. We saw that in 2008 and 2009. Then 2010 onwards, we saw that the current account deficit again became manageable, 2.2% in 2011, and stock market went up by 36% and so on. And then again, if you come back to 2017, 18, what you saw in 2018 that the current account deficit went to 6% of GDP, and the stock market went down 10%. And then again, 2019, the current account deficit went down to, it was very high at about 5% of GDP, and the stock market gave a negative 19% return. This year, we're expecting the current account deficit to be 1.3% of GDP, and the stock market is expected. Obviously, it was doing well, but because of the virus situation, the market has come down about 30% or so. So there's a very high correlation between current account deficit and stock market. One of the reasons being that once the current account deficit is too high, our foreign exchange reserves start depleting, and basically this could lead us into a default situation. So that's what the stock market does not like. Again, if you look at foreign exchange reserves, they have been quite low. We are hoping that they will improve going forward. But, as I mentioned, foreign exchange reserves are just about $11 billion, which are very, very low for a country with a GDP size of 270 billion or so. Again, as I mentioned before, current inflation is expected to drop significantly. And there's a very high correlation, negative correlation between interest rates and stock market. When interest rates go down, you see interest rates is STIBOR, which is a red line. Stock market is KSE 100, which is a blue line. So you see from 2009 onwards, as interest rate went down, the stock market went up. And then 18 onwards, as interest rate went up, the stock market went down. So if you are keeping a watch on interest rates and current account deficit, 80% of the variation in the stock market you can capture by these two factors. Again, real effective exchange rate is now close to 96. But if you go back 2-3 years, our real effective exchange rate was close to 120 plus, 120, 25, which means our currency was overvalued by 25%. Unfortunately, there was no timely devaluation. There was a period of 5 years where the currency was hardly devalued. And because of that, our exports suffered, our imports became cheap, and our current account deficit touched $20 billion. Finally, we started devaluing the currency the last 2-3 years. And at present, the real effective exchange is 96, which means that right now our currency is fairly priced and it's not expensive as it was a couple of years ago. So again, there's a strong correlation between the stock market, which you see as the sort of brownish orangish line, the corporate earnings,
which went from 218 billion, that's the blue line, to 603 billion presently. Expected to go down a bit because of the virus and then pick up a bit to 647 billion by next year. So if you see like 17, 18, the blue line and the brown line, the stock market line, it came too close, which basically was an indication that the stock market has gone expensive. And now if you see, again, the difference has increased, which means now the stock market is relatively cheaper in line with corporate earnings growth. So we're projecting corporate earnings growth only at 2%, in fact, minus 2% for fiscal year 20 because of the virus situation. Fiscal year 21, we're projecting corporate earnings growth at 9% and then 13% in the following year. On average, our corporate earnings growth has been about 11% per year. But the last 2-3 years, it has been quite bad. 2% in 2018, 2.6% in 2019, and then minus 1.5% this fiscal year. This is again an important chart which shows the difference between the earnings yield, which is for the stock market. So if a company, let's say the earning per share is 10 rupees and the price of the share is 100 rupees, then the earning yield will be 10%, which is 10, which is earning per share, divided by 100, which is price per share. So, and then with that, we have plotted the 10-year bond yield. So if you see historically, for a period from 2007 onwards, you see that both of these lines are fairly close. And if you see right now, the gap has increased tremendously. Earning yields is very high at 14%, and bond yield has now dropped to 8%. So there's almost a 6% gap. Typical gap has been 2%, which basically means that the stock market is cheap. So what happens from here, the stock market goes up in value, the price goes up, the earning yield is going to come down, and both of them are going to then sort of come close to each other, as has been the historical trend. So when this gap increases, as it is right now, it basically shows that the stock market is relatively cheaper. When this gap is narrowed, that means that the stock market is reasonably priced. Right now, it shows that the stock market is fairly attractive, and as soon as this virus situation comes under control, we can expect the stock market to rise by about 20 to 30%, especially considering in mind that interest rates have declined substantially and are expected to go down further. So in terms of a projection on how stock market is going to perform, basically, we're expecting corporate earnings to grow by 10%. Again, this is a long-term trend. If you take the next, let's say, 5 years, dividend yield about 6%, and PE ratio, which is presently, about 6, will go to about 8%, or presently about 7 will go to about 8%. So there'll be some upside from the PE ratio, and based on that, we expect about a 20% per return on the stock market going forward over the next few years. If you look at the historical trends, we see that fiscal year 97-98, the stock market did very, very poorly. And then we had a very good period of about 7-8 years. Then again, fiscal year 2008 and 9, stock market did quite poorly. And then we had some pretty good years. And then the last 2 years, the stock market has done quite poorly. And we're hoping that things should improve from here once we come out of the virus situation. If you look at the price earning ratio of the stock market, we've taken this from Bloomberg, it's 6.2, which is the lowest. It's lower than Sri Lanka, lower than India, Bangladesh. And so from this angle, we see that the stock market is fairly attractive. And as things improve, we should see money coming in. I'll skip this. So this is a little bit on the market. I think I'll talk a bit, 5 minutes on the mutual funds as well. So presently, the mutual fund industry is close to 700 billion rupees or so. Again, as it's very small, there are only 300,000 investors in the mutual funds in Pakistan versus about 9 crore in India. So, our population is 1/7 that of India. So if India's population, if India has 9 crore investors in mutual funds, and if we take 1/7 of that, because our population is 1/7, we should have about 13-14 million investors in mutual funds. We have 0.1
3 million, only 300,000. So our industry has not done well. Some of it is the macro factors, Pakistan risk is high. And because of that, political turmoil, law and order situation has been bad, situation with Afghanistan, wars, uh, and very little investment on human infrastructure in Pakistan in terms of education, healthcare, clean drinking water, population planning. Again, a huge gap versus India and Bangladesh, and that's now reflecting in our stock market and capital markets as well. Partially also because I think the SECP regulations have been very tough on the mutual funds. They've been micromanaging things. They've been trying to fix price of our products, and the industry does not grow like this. Finally, luckily, I think the last 6 months to a year, we have seen that SECP is interfering less into the pricing, because pricing should be ideally left to the market forces. That there are 19 mutual fund companies. There are like 250 plus mutual funds. So there's sufficient competition within the market, and therefore the regulator should not get into pricing. But unfortunately, it has been historically, and because of that, it has not been feasible for us to open new branches to hire more people. As I said, now things are relatively better. Pricing restrictions have been relaxed, and mutual funds were now sort of growing, opening branches. There are about 2,000 sales force within the mutual fund industry. Out of that, 1,000 is with NBP funds, or my company. We're hiring about 300, 400 people every year, but now with the corona situation, obviously we have slowed down. But finally, I think people are getting more aware of the benefits of mutual fund, because people do not have time or the expertise to invest in capital markets. And that's where they should go through mutual funds, where we have professional teams. NBP funds, for example, has in our fund management team and portfolio management, I think we have close to 13, 14 CFAs in the team. So basically, these are professionals who can better manage the money than people who are not experts in the field or who do not have time to manage their own money. And that's why mutual fund industry has grown tremendously worldwide. For example, in the US, there's more money in mutual funds than in banks. And in Pakistan, mutual fund assets are only 5% of bank deposits. So in India, I think they're like now 20, 25%. So as the economies develop, the mutual fund industry develops, and we have continuously hired. We're looking for CFAs to work for our fund management team or our portfolio management team. We're looking to hire people in our business development wing, MBAs and so on. And we're looking for people to hire in our sales force. So we continuously look for good professionals to join our team. I'll stop here and maybe take some questions. I think that's a better way. Thank you very much, sir, for the wonderful session. So, Abhi, if somebody from the audience having a question, Dr. Aisha, Dr. Wabia, if you are listening, अगर आप unmute करके, if you have any question if you want to ask. Sir. जी, Mohsen, I believe. या लुकमान. Sir, लुकमान sir. जी लुकमान. Sir, क्या हाल है? ठीक है. अल्लाह का शुक्र जी. अच्छा सर, मैंने yes sir. सर मैंने थोड़ा सेशन लेट ज्वाइन किया, तो मेरा सवाल है, जब मैंने ज्वाइन किया सर ये बात कर रहे थे कि लास्ट 2 ईयर हमारी कंट्री के लिए बहुत टफ रहे ना स्टॉक एक्सचेंज और सब चीज़ों के लिए, और अगर फ्यूचर में भी 2 ईयर्स टफ रहेंगे, फ्यूचर को तो समझ आती है कि टफ रहेंगे ड्यू टू कोरोना वायरस, जो लास्ट 2 ईयर उनकी वैलिड रीजन क्या थी? पहली बात. ओके जी जी यस सर, आपका आंसर कर सर. ओके, देखिए बेसिकली उसकी वजह ये थी कि एक तो हमारे मुल्क ने कर्जे बहुत ले लिए, ठीक है, हमारी जो डेट टू जीडीपी रेशियो 100% चली गई है, और जब आप बहुत ज़्यादा कर्जे ले लेते हैं तो फिर आपके लिए मुल्क चलाना मुश्किल हो जाता है, फिर आप टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और जब टैक्स बढ़ते हैं तो उससे भी आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है. दूसरा ये हुआ कि हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू नहीं किया फॉर अ गुड 2-3 ईयर्स, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट तो $24 बिलियन पर स्टेगनेट हो गई. पिछले 5-7 साल में एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब आप करेंसी को डीवैल्यू नहीं करते तो इंपोर्ट सस्ती हो जाती है. तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब चला गया और हमारे रिजर्व जो $20 अरब थे वो $8 अरब पर आ गए.
तो जब आपके एक मुल्क के रिजर्व्स इतने कम रह जाते हैं $8 बिलियन, तो फिर इन्वेस्टर्स वरी करते हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट ही ना कर, तो फिर वो स्टॉक मार्केट से और बॉन्ड मार्केट से निकल जाते हैं। तो एक तो ये रीजन था, और दूसरा जब करेंसी पे डिवैल्यू की तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब जब अगर आपको हमारा मनी मार्केट फंड या PIB जो है वो 13-14% का रिटर्न दे रहा है, तो फिर लोग कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट का रिस्क क्यों लें, हमें जब बिल्कुल सेफ 13-14% मिल रहा है, या नेशनल सेविंग स्कीम में मिल रहा है 13-14%, या बैंक में या बॉन्ड में, तो फिर लोग स्टॉक मार्केट से निकल के और बॉन्ड मार्केट में चले जाते हैं और फिक्स इनकम में चले जाते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हुए, हमारा महाना आमदन फंड 12.5% रिटर्न दे रहा था अब से 2 महीने पहले। अब क्योंकि स्टेट बैंक ने अपना डिस्काउंट रेट कम कर दिया, तो अब उसका रिटर्न कोई 8% पर आ गया, फ्रॉम 12.5% इन 2 months अब हमारे इन्वेस्टर को 8.5 मिल रहा है। अगर यहाँ से 2% इंटरेस्ट रेट और कम हो गए तो वो रिटर्न हमारा 6.5 पे चला जाएगा। हमारा भी रिटर्न, NSS स्कीम पे भी रेट कम हो गए हैं, बैंकों ने भी रेट कम कर दिए हैं। तो अब जब इन्वेस्टर ये देखेगा कि उसको इन जगह पे फिक्स्ड इनकम में 6-7% मिल रहा है, तो फिर वो स्टॉक मार्केट का रिस्क लेने को तैयार हो जाता है कि जी ठीक है, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आ जाएगी। So that's that's another reason. Higher interest rates, higher current account deficit, lower foreign exchange reserves. These are some of the reasons the stock market has not done well. हमारी political uncertainty जल्दी high होती है, उसका भी impact आया पिछले 3 सालों में। सर जहाँ तक उसकी बात है ना कि डेप्थ की, वो मैं एग्री करता हूँ कि हमने काफी ज्यादा लिए, लेकिन जहाँ तक इंपोर्ट की बात है ना, जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो रिसेंटली उन्होंने इस पे काम किया कि इंपोर्ट को कम कर दिया। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब उसके जो से एक्सपेंसिव जो भी सब कुछ इवन डेट उन्होंने बहुत कम कर दिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करो, और ये जो से इंपोर्ट से उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिए कि लोग वो बाहर की चीज बाई ही ना कर पाए। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि सर मैंने अभी देखा आप इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि उनका ये रिजर्व ज्यादा हो गया, उनकी GDP सर वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है और कई गुना उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो मैं कहता हूँ कि सर वो भी अंडर डेवलप्ड और हम भी, लेकिन हमें इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। सर आप क्या बोलते हैं इस बारे में? ओके, पहला क्वेश्चन जो था इंपोर्ट का, ये देखें इंपोर्ट कम हुआ, ये जब करेंसी डिवैल्यू हुई है तो उससे इंपोर्ट कम हुए, एक्सपोर्ट थोड़े से बढ़े, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट इंडेक्स 27,000 से बढ़कर 42,000 पर चला गया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। 5-6 महीने में इंडेक्स कोई 30% बढ़ गया, फ्रॉम 27,000 टू 30 भी नहीं, ऑलमोस्ट 40%, फ्रॉम 27,000 टू 42,000। उसके बाद जब ये कोरोना वायरस हुआ तो उसके वजह से इंडेक्स दोबारा गिर गया। अगर ये वायरस ना होता तो इंडेक्स आज भी अराउंड 42,000 44,000 होता, जो अभी इस टाइम पे 32,000 के करीब है। तो बेसिकली वायरस की वजह से मार्केट दोबारा गिरी है कोई 30%, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं गिरी है, इंडिया में भी गिरी है, अमेरिका में भी गिरी है, यूरोप में भी गिरी है, हर जगह गिरी है। जहाँ तक इंडिया से कंपैरिजन है तो देखें, इंडिया का हमारा पर कैपिटा इनकम वगैरह हमारा तकरीबन एक ही था, अब फर्क आता जा रहा है। अब इंडिया का पर कैपिटा बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं बढ़ता। उसका लिंक जो है वो और फैक्टर से है, बिजनेस उसमें कैसा ग्रो कर रहा है, उस मुल्क ने ह्यूमन डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया है, उस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी, ये फैक्टर्स होते हैं। बाज़ मुल्क हैं उनकी पॉपुलेशन बड़ी है और वो कम ग्रो कर रहे हैं, बाज़ मुल्क हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो बेसिकली पॉपुलेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का ताल्लुक नहीं है, मगर आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया उससे ताल्लुक है। और हमारा और इंडिया और बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम आज से 15-20 साल पहले तकरीबन बराबर ही था, मगर अब इंडिया और बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम हमारे से ज़्यादा चला गया, ऊपर चला गया, क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सर ये कोविड-19 के बाद जो हमारी इकोनॉमी होगी, इस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। अभी जो खबरें आ रही हैं कि बहुत से जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ पाकिस्तान GDP,
वो काफ़ी बुरे हाल में है, क्योंकि जब 3-4 महीने आपका बिजनेस नहीं चलता और आपने खर्चे भी आपके हैं, आपने किराया भी देना है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को भी पे करना है, और तो अब उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ख़तरा ये है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस में शट डाउन, स्पेशली अगर ये और वायरस सिचुएशन थोड़ी एक्सटेंड हो गई फॉर द नेक्स्ट जैसे 4 मंथ्स 6 मंथ्स, बिकॉज ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि जी वैक्सीन आएगी तो दिसंबर तक आएगी, कोई क्योर आएगा तो उसमें भी 2-4 महीने 6 महीने लग सकते हैं। तो अगर अभी ये सिचुएशन इसी तरह अनसर्टेन रही, तो अगर थोड़ा सा इकॉनमी खुल भी गई, दुकानें खुल भी गई, तो लोग शॉपिंग कम करने निकलेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इम्पैक्ट होता रहेगा। सो इसका अभी काफ़ी इट्स टू अर्ली बिकॉज वी आर विद इन अ क्राइसिस, अभी हम क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ, तो टोटल जज करना कि इसका क्या इम्पैक्ट है डिफिकल्ट है। बट व्हाट आई कैन से कि लाखों छोटे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे और मिलियंस ऑफ जॉब्स विल बी लॉस्ट। so I think very bad consequences to our country. सर एज अ टेक्निकल एस्पेक्ट अगर हम इसको लुक ओवर करें तो सर ये जिस तरह अभी लॉकडाउन वगैरह है, चीज़ें फिर भी स्टेबल हैं, मतलब इतनी महंगाई नहीं हो रही, सब कुछ रुका हुआ है। ये जब लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ज्यादा नहीं गिरेगी? महंगाई तो मेरे ख्याल में नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफ़ी गिर गई हैं। अगर आप ऑयल देखो जब हम इंपोर्ट करते हैं, या सिल्वर देख लो, या कॉपर देख लो, कोई भी कमोडिटी देख लो, उनकी प्राइसेस गिर गई हैं दुनिया में। और तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है कि बेसिकली पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कम कर दी हैं, शायद कुछ और कम हो जाए। सो महंगाई तो देखें, जब डिमांड ज़्यादा आती है चीज़ों की तब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है। अभी तो डिमांड चीज़ों की कम है। इन्फ्लेशन अभी तकरीबन आ गई 8.5% पे, जो अब से चंद महीने पहले 14% पर थी। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है स्टेट बैंक की भी और हमारी भी कि ये फर्दर कम होकर तकरीबन इन्फ्लेशन 6.5 पे चली जाएगी इन द नेक्स्ट 6 months to year। तो इशू इन्फ्लेशन का नहीं आएगा, इशू जो आएगा जॉब्स का, और इशू आएगा कि क्या बिजनेसेस ये जो इतना लॉस इन्होंने उठाया है चंद महीने, क्या इसके बाद ये अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं या अपने आप को शट डाउन करने पर मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी sir, I have a question. My question is regarding the mutual funds. Why they were unable to develop that goodwill in Pakistani market? आई थिंक मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। अगेन एक तो ये है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यू नो। इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानियों को, अगर कोई आपके पास जाता है कि जी मैं बैंक से आया हूँ, यूबीएल बैंक से आया हूँ, तो आपको पता है व्हाट बैंक इज। A lot of people do not know what mutual funds are. So basically उसकी वजह ये है, जिस तरह बैंकों में there are close to 50,000 स्टाफ जो सिर्फ डिपॉजिट मोबिलाइज कर रहा है, जो लोगों को कहता है कि आप आके हमारे पास इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2,000 का स्टाफ है, ठीक है। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और म्यूचुअल फंड ने इतना इसलिए ग्रो नहीं किया। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक तो जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस थे वो इतने सख्त थे कि वो ब्रांच खोलना फीजिबल ही नहीं था, बिकॉज एससीसीबी की तरफ से आप इतने परसेंट से ऊपर फीस नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते। तो वो जो ऑफर कर रहे थे उसमें बारह ही नहीं खाता था कि आप ब्रांच खोलो। तो आपने देखा कि अभी बैंकों की लाखों ब्रांचेस हैं इन पाकिस्तान, म्यूचुअल फंड्स की शायद मिल के 100 भी नहीं होंगी पूरे पाकिस्तान में। तो जो बिजनेस फीजिबल ना हो वो तो कोई उस बिजनेस में जाता नहीं है। अब क्योंकि थोड़ा एससीसीपी ने रिलैक्स किए हैं ये प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शंस, तो अब थोड़ा फीजिबल हो गया कि हम अपनी ब्रांचेस खोलें। और मेरा ख्याल है कि अगले चंद सालों में म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाएगी। जिस तरह मैंने कहा, अगर हम किसी भी देख लें, मैंने इंडिया की एग्जांपल दी, 9 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1/7 है इंडिया से, तो अगर वहाँ 9 करोड़ है तो यहाँ 1.25 करोड़ होने चाहिए, यहाँ 3 लाख लोग हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो और क्योंकि म्यूचुअल फंड नहीं ग्रो किए, तो जो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट कम है पाकिस्तान में, उसका एक रीज़न यही है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो नहीं ग्रो किए। कुछ और रीजंस भी हैं। सो आई थिंक वी हैव बीन स्टक इन दिस विशियस साइकिल एज अ कंट्री, और हमें ना सिर्फ म्यूचुअल फंड का साइज छोटा है, हमारी बॉन्ड मार्केट बहुत छोटी है। जैसे मैंने शुरू की स्लाइड दिखाई, जो लोग शुरू से ज्वाइन किए हुए हैं, दे वुड हैव सीन इट। हमारी स्टॉक मार्केट
इस 25% ऑफ जीडीपी, दुनिया में जो एवरेज है वो 80% ऑफ जीडीपी है। तो सारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो डेवलप नहीं है, और आई थिंक देयर इज अ नीड टू वर्क ऑन दिस। सर जो आपने स्टार्ट में बात की ना कि हमारे यहाँ सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आई गेस दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे ना स्टॉक में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ना कोई बॉन्ड में जाना चाहता है, और ना ही कोई म्यूचुअल फंड का, एज द टोल्ड यू कि लाइक माय फैमिली इज पायनियर ऑफ who is investing in NIT। शायद 70s इस्लामाबाद में, शायद 70s से या लेट 60s से NIT है, तो उस टाइम से मेरी फैमिली इस पे इन्वेस्ट कर रही है। So I know about it, but majority people doesn't know about NIT। तो वो जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी NIT की, तो I got to know कि मैंने कहा चले there is somebody who know about NIT। but ना यहाँ I talk to MCB, RFB people, I talk to UBL, ये जिनके एसेट मैनेजमेंट वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, and very few people know about this NIT is also working in Pakistan। So this is a lack of information as well as lack of awareness, you can say, कि हम लोगों को even people who are teaching, उनको भी बहुत कम लोगों को पता है कि what are the options we have in mutual funds in Pakistan। एग्री उस्मान, लोग बैंकों में गए हैं, इसी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, वरना टिपिकली पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बैंकों में इन्वेस्ट करती थी, और वहाँ जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से भी कम मिलता है। तो इसलिए लोग कहते थे भाई सेव करने का फायदा क्या, क्योंकि अगर रिटर्न इतना कम मिल रहा है तो उससे तो स्पेंड कर लो। दूसरा हमारे कल्चर का भी हिस्सा है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी शादियों पे, अपनी शो पे ज़्यादा खर्चा करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और सेव कम करते हैं। तो ये कुछ हमारे कल्चर का हिस्सा भी है, और कुछ ये ऑप्शंस, लैक ऑफ ऑप्शंस, जिस तरह एज यू सेड कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसे ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे बड़ा अच्छा रिटर्न बन सकता है। ठीक है, उसमें कुछ रिस्क है, तो आप वो पैसा लेके जाते हैं जो लॉन्ग टर्म होता है, जो आपको शॉर्ट टर्म नहीं होता था कि अगर मार्केट गिरती भी है तो 6 महीने, साल, 2 साल मार्केट नीचे रहती है, फिर रिकवर कर जाती है। तो वो पैसा जो आपको 5 साल 10 साल बाद चाहिए हो, वो आपको टिपिकली स्टॉक मार्केट में लेके जाना चाहिए। जो आपको, अगर आपने अपनी बेटी की शादी करनी नेक्स्ट ईयर, तो दैट मनी शुड बी सेफ either in a money market fund or a bank deposit or NSS, something like that। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो बहुत कम है, और अगेन इसमें IFMP का रोल है कि वो ये कोर्सेज ऑफर कर रहा है जहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। हाँ प्लीज आप पूछो। प्लीज सर आप। अच्छा नहीं, आई जस्ट हैड अ कमेंट कि इसी तरीके से जैसे IFMP कर रहे हैं, इसी तरीके से वी आर वर्किंग विद स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक का है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर यूथ, तो वी आर वर्किंग विद देम एंड वी आर ट्राइंग टू एजुकेट 2 मिलियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि स्कूल और कॉलेजेस के होंगे और यूनिवर्सिटी एज वेल, ताकि उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी का बताएं कि भाई हाउ टू सेव अ मनी एंड इन फ्यूचर दे कैन कम अप एंड इन्वेस्ट इन maybe stock or mutual funds or bonds वगैरह, ताकि थोड़ी सी सेविंग की आदत पहले डालेंगे तो कुछ सेव होगा and they can able to invest something। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी मोहसिन। सर मैं ये कह रहा था कि सर हमें जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स वगैरह हैं, इन पे रिटर्न इतना लेस मिलता है, तो हर बंदा ये सोचता है अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे अच्छा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें, हमें रिस्पेक्टेबल जो रिटर्न मिलेगा। Basically, देखिए, business is again a good option, and I think I encourage people to basically go into business as well। मगर again basically ये perception है। देखो, मैंने ये स्लाइड पहले भी दिखाई थी, मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ कि अगर आप देखो लास्ट 19 years का रिटर्न, तो 100 रुपया जो स्टॉक मार्केट में है, अप्स एंड डाउन तो हुए हैं, ब्लू लाइन, मगर 100 रुपया 2200 रुपया हो गया, और जो बैंक में 100 रुपया था वो 300 रुपया हुआ। ठीक है, सो ये ज्यादा परसेप्शन है कि जी स्टॉक मार्केट में। तो इसी तरह जो बॉन्ड आप देखें, PIB को देख लें, यहाँ पे एक PIB लिखा हुआ है, और ये बॉन्ड है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। 100 रुपया 1000 रुपया हो गया, और बैंक में 100 रुपया 300 रुपया हुआ 19 साल के बाद। तो सर्टनली बॉन्ड ने भी 3 गुना ज्यादा रिटर्न दिया, और स्टॉक मार्केट ने तो 7 गुना ज्यादा रिटर्न दिया, मगर लोगों की अवेयरनेस भी नहीं है और लोगों का परसेप्शन है। I want to add one point. Yeah. I think it's about risk preferences as well. In our
country people go for certain returns. तो इस तरह के जिस तरह बैंक्स होते हैं या सेविंग हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो वो बेसिकली हमें सर्टन रिटर्न्स देती हैं, बट इन ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टॉक्स की तरफ जाएं या तो उसमें यह है कि हमारा जो है वो रिटर्न सर्टन नहीं होता। तो थोड़ा सा यह है कि रिस्क अवर्स होते हैं लोग, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी जगहों पे पुल इन करना चाहते हैं जहाँ पे उनको श्योर हो कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा। सो इस वजह से लोग थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने में। बट जितना आप सेफ जाएंगे उतना आपका रिटर्न कम भी होगा। अगर यही जो बैंक में पैसा रखा है, अगर मैं इसी को नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाता हूँ, तो इन्फ्लेशन थी 8% और बैंक ने एवरेज रिटर्न दिया 6% 19 साल में, 6% पर ईयर दिया। तो जो 100 रुपया जिसने बैंक में रखा, उसकी आज 19 साल के बाद जो वैल्यू है 100 रुपए की, वो 69 रुपीज है। इन अदर वर्ड्स, जो चीज उस टाइम 100 रुपए की आती थी, वो आज मतलब आज वो बंदा नहीं खरीद सकता, बिकॉज उसकी परचेजिंग वैल्यू 69 पर चली गई है। तो वो दोनों साइडें हैं। अगर आप बहुत कम रिटर्न भी कमाएंगे तो उसमें आपका पैसा ग्रो ही नहीं करेगा। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वन शुड नो कि आपका टाइम होराइजन क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर गिरी भी है तो 2, 4, 5 साल के पीरियड में रिकवर कर गई है। और अगर आपका होराइजन, फॉर एग्जांपल आपने रिटायर होना है आफ्टर 30 इयर्स, या आपने घर बनाना है आफ्टर 20 इयर्स, या आपके बेटी की शादी है आफ्टर 10 इयर्स, या आपके बेटे ने यूनिवर्सिटी जाना आफ्टर 7 इयर्स, 5 इयर्स, ये पैसा आमतौर पे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। अगर 100% नहीं, या स्टॉक मार्केट में जाए या रियल एस्टेट में जाए, क्योंकि ये ग्रोथ एवेन्यूज हैं। अगर 100% नहीं तो चलें, आप कम से कम 100 रुपये आपके पास है तो 50 रुपये बिल्कुल सेव रख लें और 50 रुपये स्टॉक मार्केट में डाल दें। उसका बेस्ट तरीका है थ्रू अ गुड स्टॉक फंड, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है तो म्यूचुअल फंड वुड मोस्ट प्रोबेबली डू अ बेटर जॉब देन व्हाट यू कैन डू। अगर आप बिल्कुल पैसा बैंक में रखेंगे तो वो इतना कम ग्रो करेगा कि आप अपने बेटे को, जिस तरह महंगाई है आज, अगर ₹1,00,000 महीने का खर्चा है यूनिवर्सिटी का और 4 साल में 50 लाख रुपए तकरीबन लग जाते हैं, तो अगर आप 6 साल बाद इसी, अगर इन्फ्लेशन 7-8% रही जो हमारी टिपिकल रही है, तो 6-7 साल बाद ये 50 लाख नहीं 1 करोड़ चाहिए होगा 5 साल में टू सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल, टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आपका पैसा ग्रो नहीं किया तो आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भी नहीं भेज सकेंगे। तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड इट्स अ बैलेंस बिटवीन ग्रोथ। आपको ग्रोथ भी चाहिए और आपको रिस्क को भी कंट्रोल करना है। इसलिए इसमें जैसे हमारे पास ऐसे भी फंड है जो 50% स्टॉक मार्केट में है। हमारा सरमाया इज़ाफ़ा फंड है, एनबीपी सरमाया इज़ाफ़ा फंड, वो 50% स्टॉक मार्केट में है। हमारा एक मुतवाज़न प्लान है, वो 25% स्टॉक मार्केट में है। तो अगर आप 100% रिस्क नहीं भी लेना चाह रही हैं और वो ज़्यादा लोगों को नहीं सूट करता, तो कम से कम जिस तरह चाय में थोड़ी चीनी मिलाते हैं, कुछ आपका परसेंटेज स्टॉक्स में होना चाहिए ताकि आपका ग्रोथ भी मिले। बिकॉज एक तो ये है कि रिस्क ये है कि जी ठीक है आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया, दूसरा ये भी रिस्क है कि कोई बंदा रिटायर हुआ और उसके पास इतना कम पैसा है कि उसका खर्चा भी नहीं चल रहा आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बेसिकली यू हैव टू मैनेज या बैलेंस दीज टू टाइप ऑफ एवेन्यूज, व्हिच वन इज रिस्क एंड वन इज ग्रोथ। तो जो शॉर्ट टर्म पैसा, जिस तरह मैंने कहा कि अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है अगले साल, वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है 10 साल बाद, तो वो स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिरती है मगर फिर रिकवर कर जाती है। तो अगर आप बेच नहीं रहे, आपका लॉस तो हो गया, मगर अगर आपने बेचा नहीं तो कोई बात नहीं, आपके 10 लाख की वैल्यू 8 लाख चली गई, साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेगा, वो 10 लाख पे आएगी, फिर 2 साल और गुजरेंगे, वो 14 लाख पे चला जाएगा। तो बेसिकली जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। अगर मैं इस स्लाइड पे देखूं तो स्टॉक मार्केट ने 18% साल का रिटर्न दिया। ठीक है, अगर आप ये टॉप पे देखें, एनुअलाइज्ड रिटर्न स्टॉक मार्केट 18% पर ईयर और बैंक में 6% पर ईयर। तो सेफ्टी तो है, मगर साथ दूसरा उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से भी कम रही है। तो एक बैलेंस लेके चलना जरूरी होता है। आपके एक जो अच्छा पोर्टफोलियो, उसमें कुछ पैसा बिल्कुल सेफ होता है, कुछ पैसा बॉन्ड्स में होता है जिसमें थोड़ा रिस्क होता है, कुछ पैसा रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में होता है जिसमें ज्यादा रिस्क होता है। तो आपको सब बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ये सर मैंने ये पूछना था कि हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। सर मैंने ये पूछना था कि जो हमारा परसेप्शन है कि रिस्क हाई होगा तो रिटर्न भी हाई होगा, सर ये अंडर डेवलप कंट्रीज में ये
अजप्शन होती है या ओवरऑल वर्ड में यही होता है? और पहली बात सर के जैसे अब हम फ्रेश कैंडिडेट है सर, मैंने अभी शेयर्स बाय करने थे सर को पता है, अकाउंट बनाना था, तो सर मैंने एक चैनल सब्सक्राइब किया, समान मनी के वो नाम है उसका, वो अवेयरनेस देते हैं ये बॉन्ड और शेयर्स और ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे सर ने भी कहा कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में अवेयरनेस ही है, जैसे आपने भी कहा कि इसकी ब्रांचेस कम है। सर जरूरी तो नहीं है ब्रांचेज ही हो, लेकिन सोशल मीडिया भी है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और सर मुझे ये भी बताएं कि कौन कितना रिटर्न दे रहा है, कि जैसे अब हम जो से स्टूडेंट हैं, फ्रेश कैंडिडेट, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें या सूटेबल हमारे लिए शेयर्स रहेंगे? शेयर्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। सर ने हमें क्लास में भी स्टॉक एक्सचेंज की वो वेबसाइट ओपन करके दी थी, हमें बताया भी था, और बॉन्ड का भी बता दें और म्यूचुअल फंड में भी बता दें कि रिटर्न कितना मिलेगा और हमें कहाँ पे सूटेबल हमारे लिए कहाँ पे, जैसे हम फ्रेश स्टूडेंट। देखिए, एक जो सारे म्यूचुअल फंड एक चीज करते हैं जो दुनिया में भी होती हैं, वो ये होती है कि जब कोई हमारे पास आता है तो हम उसकी पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, ठीक है ना। उसको पैसे कब चाहिए, उसकी उसकी एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी नीड्स, जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो कब आएंगी, अपने घर कब बनाना है, अपने रिटायर कब होना है, आपके बच्चों ने यूनिवर्सिटी कब जाना है, अपने बच्चियों की शादी कब करनी है, अपने हज पे कब जाना है। तो ये चीज़ इस तरह नहीं बता सकती, बिकॉज ये हर एक की डिफरेंट होती है। तो हमारे पास इस टाइम 1000 लोगों की सेल टीम है, वो डेली 3-4 हज़ार लोगों को मिलते हैं, 3-4, तो वो उनके साथ बैठ के उनका एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, उनकी नीड्स को देखते हुए और उनका रिस्क देखते हुए। बाज लोग बहुत रिस्क वर्स हैं, वो कहते हैं हमें तो बिल्कुल सेफ्टी चाहिए, तो हम उनको अपना मनी मार्केट फंड ऑफर कर देते हैं, बिल्कुल सेफ्टी है, मगर उसका रिटर्न भी रिलेटिवली कम होता है। आजकल उसका रिटर्न तकरीबन 8% है। ठीक है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें भी पैसे, हमें हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग है, हमें बेटी की शादी करनी है 10 साल बाद, उनको हम कहते हैं कि कुछ हमारा एक जो वो प्लान है जो से 50% स्टॉक मार्केट में, अब उसमें चले जाए। तो ये 1-to-1 बैठ के हर एक के साथ उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। और जहाँ तक बात की सोशल मीडिया वगैरह, वो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारे पास तकरीबन 50,000 इन्वेस्टर्स हैं और सोशल मीडिया में हम काफ़ी एक्टिव हैं, और वहाँ से हमें बहुत सी लीड्स मिलती हैं, फिर हमारे सेल्स फोर्स जाके उनको मिलते हैं और उसमें हमारे नए इन्वेस्टर्स भी बनते हैं। राइट जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? राइट जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू उस्मान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये कोविड-19 का असर कम होता है और यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, तो वी विल डेफिनेटली वांट टू हैव यू इन आवर यूनिवर्सिटी, ताकि फेस टू फेस इंटरेक्शन ही और तरह का होता है। और डेफिनेटली ये सर स्लाइड्स हमारे पास हैं व्हिच इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। मैं स्टूडेंट्स के साथ भी विद योर परमिशन इफ यू अलाउ अस, तो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर कर लूं। बिल्कुल, यू आर वेलकम टू शेयर विद हूसोएवर। ये तो जनरल जितना इंफॉर्मेशन बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, उतना पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड लुक फॉरवर्ड, इट विल बी माय प्लेजर टू कम बाय व्हेनेवर द सिचुएशन इज feasible. Thank you very much sir. Okay, Usman. Thank you sir. Allah Hafiz.